केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया केंद्रीय अंतरिम बजट। कहा, पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना ही असल सामाजिक न्याय की प्राप्ति। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने बुलाया झारखंड बंद। हाईकोर्ट से सोरेन को नहीं मिली राहत। क्रिमिनल रिट याचिका पर कल होगी सुनवाई। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। चंपई सोरेन बने विधायक दल के नेता। सरकार बनाने का किया दावा। राज्यपाल के फैसले का इंतजार। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री दर्ज की गई गिरावट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती सीतारमण ने छठी बार बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। पिछले 3 पूर्ण केंद्रीय बजट की तरह वर्ष 2024 का अंतरिम बजट भी पेपर रहित होगा। इस वर्ष आम चुनाव होने के बाद नई सरकार पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेगी। In the last 10 years, the people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। Have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action. Reduces corruption. अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन प्रतिमान है। Have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive
and all-inclusive. Sarvangeen, Sarvasparshi or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption. इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि उनमें से कुल 2,30,000 लोगों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। To 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. बजट पेश करने से पहले अपनी पूरी टीम के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची। उनके साथ साथ राज्य मंत्री भी थे। उस वक्त की तस्वीर मुंह मीठा कराया जा रहा है और मुझे लगता है कि मीठी बजट की उम्मीदें हम सभी करें। जिंदर साहब कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखता हूँ कि साल दर साल वित्त मंत्री की भी मुस्कान बढ़ती जा रही है, वो आ रही है उस कॉन्फिडेंस से जो देश सब मिलजुल करके इस तरह के हालात पैदा कर रहा है कि हर एक कुछ ज्यादा लोग इसे खुश हैं, सिर्फ वही लोग थोड़ा सा मुश्किल में हैं जो जिनकी मजबूरी है कि उन्हें दुखी रहना है। और जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि ये जो नारी शक्ति को लेकर के जो गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किए हैं 4 स्तंभ, बिल्कुल सही किए, क्योंकि इनमें पोटेंशियल कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं अपने, यूथ, नारी शक्ति, फार्मर्स और ये पुअर जो लोग हैं इनको, तो इनको सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है, इनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे ज्यादा रिजल्ट निकल सकते हैं और देश बहुत मजबूत बनेगा। लेकिन अगर हम इनको इग्नोर करेंगे या कमी छोड़ेंगे तो फिर वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और बाकी सारी चीजें वो पूरी नहीं होती। वो इन्हीं स्टेप्स को लेने से हम उसे बिल्कुल पास या वहां पर पहुंचेंगे और आगे भी ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बनी रहेगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के खिलाफ क्रिमिनल रिट याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की पूछताछ और गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट से फिलहाल हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में अब सुनवाई कल होगी। ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष जो याचिका दायर की गई थी उसमें तकनीकी खामियां एवं दूसरे पक्ष के अधिवक्ता को बिना सूचित किए, बिना कॉपी सर्व कराए यह याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर माननीय खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बिना दूसरे पक्ष के यह मामले को कैसे सुना जा सकता है। विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए यह बताया गया कि कल देर रात
इस मामले में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जिसको लेकर कुछ डॉक्यूमेंट इसमें शामिल करने के लिए एक आईए के माध्यम से समझ चाहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को कल रात सौंप दिया है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को राजभवन से रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस ले जाया गया। इधर राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है और उन्होंने 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। संघर्ष हमारा नारा है और ये लोकतांत्रिक सरकार के हमने प्रतिनिधि के रूप में हमारे विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन जी को हमने चुना है। उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाए, इसका निवेदन करने हम आए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है। बंद को देखते हुए ईडी कार्यालय समेत अन्य जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर कई स्कूलों ने भी कक्षाएं बंद कर दी हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि झामुमो का इस बंद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की है। हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफे के बाद सरायकेला से विधायक चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उन्होंने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बनने के बीच उनके सरायकेला खरसावां से लेके जिलिंगोरा गांव स्थित पैतृक आवास में जश्न का माहौल है। गांव में परिवार और आसपास के लोगों ने पारंपरिक तरीके से जश्न मनाया। खुशी भी है, हेमंत जेल के काम छोड़ करके, इसीलिए तो बहुत दुख भी लग रहा है और इधर दरा को सौंप दिया पूरा जिम्मेदारी। अभी कल राजनीति का संभाल रहा है, जनता को भी देखना है। चंपई सोरेन के पड़ोसी हैं और हम लोग को बहुत खुशी है कि चंपई सोरेन जी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी है। साथ भी हमें थोड़ा गम भी है कि इससे पहले हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे तो उनका कार्यकाल खत्म होने के चलते थोड़ा सा गम भी है। रांची के न्यायायुक्त अरुण कुमार राय को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से 18 जनवरी को श्री राय को न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की गई थी। श्री राय की शपथ लेने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 19 हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से बंद करने का निर्देश दिया है और 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि नियमों का लगातार अनुपालन नहीं करने और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताओं के कारण पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देवघर के हिंदी विद्यापीठ में इग्नू की ओर से इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी विद्यापीठ परिसर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। देवघर हिंदी विद्यापीठ के व्यवस्थापक कृष्णानंद झा ने बताया कि अनुचिंतन फाउंडेशन, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 17 और 18 फरवरी को आयोजित हो रहे सेमिनार का मुख्य उद्देश्य नए शोधार्थियों और पुराने शोध विशेषज्ञों के बीच एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। इन्वायरमेंट में क्या है, क्या असर हो रहा है, ग्लोबल क्या अभी चल रहा है, इन सारे चीज़ों पर स्टूडेंट्स या स्कॉलर जो है वो रिसर्च पेपर दे रहे हैं, वो अपने आइडियाज़ को देंगे तो इससे यंगर जनरेशन भी इस चीज़ को समझ सकेगी। सिर्फ एक पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं एजुकेशन का और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, उसका प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स है वो अगर हम नहीं करें तो इससे वो अचीव हम नहीं कर सकते हैं जो हम चाहते हैं करना। इसलिए ये सेमिनार, इस तरह का जो सेमिनार होता है वो एक नया बूस्ट करता है इसको आगे बढ़ाने में। वहीं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक सरोज कुमार मिश्रा ने बताया कि इस दौरान रिसर्च जर्नल में प्रकाशित पेपर का विमोचन भी किया जाएगा। आयोजन के बाद उसी समय हम लोग चाह रहे हैं कि रिसर्च पेपर्स जो है ISSN
जर्नल जो रेफरी जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल है, तो उसमें हम लोग क्वालिटी पेपर्स को प्रकाशित करेंगे। इससे जो रिसर्च स्कॉलर्स जो पीएचडी वगैरह करते हैं, तो उनकी एडवाइस होती है यूजीसी के मुताबिक कि वो अपने टॉपिक से संबंधित एटलीस्ट 2 पेपर्स जो है वो जर्नल्स में, रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हों, तभी उनका शोध कार्य जो है स्वीकृत किया जाता है मूल्यांकन के लिए। इस सेमिनार में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें देश विदेश के कई शोधकर्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन शामिल होंगे। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। राज्य के कुछ युवा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है कर्तव्य पथ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्कूल के नहीं है, लेकिन राजधानी रांची की व्यस्त भीड़भाड़ से अलग एकांत वातावरण में सजी यह पाठशाला किसी उम्दा विद्यालय से ज्यादा अच्छे है। वह इसलिए कि यहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीने का सलीका और बेहतर नागरिक बनने के गुर भी सिखाए जाते हैं। यह पाठशाला हर रविवार और छुट्टी के दिनों में सजती है। करीब साल भर पहले केवल 15 बच्चों से शुरू हुई यह पाठशाला का कुनबा अब काफी बड़ा हो गया है। इसे शुरू करने वाले युवाओं ने इसे कर्तव्य पथ नाम दिया है, जो इस पर सटीक बैठता है। जब हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत करी थी, करीब मुझे लगता है 15 बच्चों के साथ, धीरे धीरे इस गांव के जितने बच्चे थे सारे आके जुड़ गए। 25 बच्चे हुए। उन 25 बच्चों की अगर प्रोग्रेस की बात करें तो जो बच्चे शुरुआत में जिन्हें हमने 1 2 लिखना सिखाया है शुरुआत के दिनों में, आज वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच गए बच्चे। इस पाठशाला के छात्र शिवा को अब मैथ के ऐसे ट्रिक और शॉर्टकट्स आते हैं कि वह आसानी से सवालों को हल कर लेता है। रूपा कहती है कि घर से ज्यादा उसे अब यहाँ मन लगने लगा है। मैं यहाँ कर्तव्य पथ क्लास में 6 महीने से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ बहुत सारे मैथ के ट्रिक्स और बहुत सारा शॉर्टकट चीज़ मिले, जिससे मैं मैथ में अब जल्दी से जल्दी सॉल्व करने पाता हूँ। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ सीखने के लिए लगा। यही नहीं, समाज में बेहतर मुकाम हासिल कर चुके लोगों को सुनकर बच्चों की हौसला अफजाई होती है और जीवन में कुछ अच्छा करने की तमन्ना को भी बल मिलता है। यहाँ पे आते हैं और सबको अच्छे सीखते हैं, अच्छे बात, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटे से सभी को अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाता है। फिलहाल रांची के 4 वैसे इलाकों में कर्तव्य पथ संचालित हो रही है, जहाँ ज्यादातर गरीब तबके के और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले निवास करते हैं। जाहिर है यहाँ बच्चों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का बिल्कुल अभाव था, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक बार आप इस पाठशाला का भ्रमण करें, आप निराश नहीं होंगे और आपको ऊर्जा भी मिलेगी। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, जबकि कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। देश के पश्चिमी हिस्से में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे मौसम में बदलाव दिखा जा रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के कई हिस्सों में हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में सिमडेगा जूनियर महिला जिला चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसके फाइनल मैच में एसटीसी सिमडेगा की टीम ने एसटीसी लचरागढ़ की टीम को 3 के मुकाबले 2 से पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड का पूरा इलाका टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है। कोविड के बुरे समय को यहां के लोगों ने अवसर के रूप में बदला और कई लोग नौकरी छोड़कर टमाटर की खेती से जुड़े। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा के छोटे से गांव लुआडी में रहने वाले राजेश रंजन बताते हैं कि यहां की जमीन काफी उपजाऊ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की योजना का लाभ उठाया और पॉली हाउस का निर्माण किया। इसमें 600 पौधे लगाए गए हैं, लेकिन टमाटर के लिए फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए किसानों को ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। धीरे धीरे मैं यहाँ महसूस किया कि किसान जो है प्राइस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर समय पे नहीं करे तो इस खेती को छोड़ते जा रहे हैं, जो उचित नहीं था। दूसरा, किसी भी तरह का फूड प्रोसेसिंग का यूनिट नहीं इनके पास है। तो टमाटर वेस्टेज, एवरेज टमाटर का कीमत किसान को 4 से 5 रुपए ही मिल पा रहा था। वहीं पटमदा की ढाकीडी गांव में रहने वाले सुनील महतो कहते हैं कि उन्होंने टमाटर के साथ साथ खीरा भी लगाया हुआ है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। हम लोग अभी फिलहाल तो अभी पॉली हाउस के अंदर है, यहाँ हम लोग खेती किए हैं, टमाटर का खेती किए हैं और टमाटर हम लोग यहाँ और ये भी लगाए थे, खीरा भी लगाए थे, तो यहाँ भी मेनली हम लोग टमाटर का खेती है। वहीं एक अन्य किसान युधिष्ठिर महतो कहते हैं कि वे करीम सिटी कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेती के कामों में काफी मन लगता है। खेती में वैल्यू एडिशन कर नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इंटर करने के बाद पापा लोग का हेल्प करना, हाथ बटाना इधर उधर, तो तब से किए कि इसको ही करियर क्यों नहीं बनाया जाए। केंद्र सरकार की योजनाओं और नई तकनीक के इस्तेमाल ने खेती को एक अलग रूप दे दिया है।
गांव के युवा पढ़ाई के साथ साथ खेती को ही करियर के रूप में चुन रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया केंद्रीय अंतरिम बजट, कहा पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना ही असल सामाजिक न्याय की प्राप्ति। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने बुलाया झारखंड बंद। हाईकोर्ट से सोरेन को नहीं मिली राहत, क्रिमिनल रिट याचिका पर कल होगी सुनवाई। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने CM पद से दिया इस्तीफा। चंपई सोरेन बने विधायक दल के नेता, सरकार बनाने का किया दावा, राज्यपाल के फैसले का इंतजार। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री दर्ज की गई गिरावट।